على إبراهيم كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم آل نہیں علی آلی ہاں علی ابراہیم کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے تو ہم لام زیر لی کہیں گے ہے نا وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم رب يسر رب يسر رب يسر رب نہیں ربي ربي رب يسر ولا تعسر ولا تعسر تعسر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح رب زدني علما رب رب زدني علما زدني رب زدني رب رب زدني علما زدني رب زدني علما رب رب زدني زدني علما علما تو ہم لوگوں نے کتنا پڑھ لیا تھا؟ سورہ نصر پڑھ رہے تھے کل سورہ نصر ہاں شروع ہی کی تھی تو انشاءاللہ اب ہم جی سورہ جی نصر پڑھیں گے تو انشاءاللہ باقی آپ لوگوں نے انشاءاللہ پریکٹس کی تھی جو ہم نے کلاس کر لی تھی جی ماشاءاللہ تو ہم اب نصر پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج میں آپ کو کیونکہ ہمارا زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس السلام ابھی جو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اٹینڈنس ہوگی باجی؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی ہیں ابھی تھوڑا رک السلام کر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا لوگ اکٹھا ہو جائیں پھر انشاءاللہ جی تو اب میں آپ کو قاعدے بتاتی ہوں تو تھوڑا اور سے سننا ہے کیونکہ اگزام ہوگا تو اس میں آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ عذر تھا وہ عذر تھا ہے نا. تو جو بھی قاعدے ان سورہ میں جو ہم پڑھیں گے 10 سورہ جو ہم پڑھیں گے اس میں سے آپ کو اچھی طرح سارے جو قاعدے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور بتانا بھی آنا چاہیے ہے نا. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں تو کوشش کریں کہ آپ بھی اسی طرح بتائیں. ہم فیل تک پڑھیں گے پورا ہے نا.
تو انشاءاللہ ہماری جو 2 ہفتے اور ہوں گے تو ہمارا مکمل ہو جائے گا 12 کلاسیں. اگر وقت ہوگا تو ہم ریویژن کر سکتے ہیں. بعد میں ریویژن اس طرح کریں گے صرف قاعدے پوچھ پائیں گے کیونکہ اگر سورہ شروع کریں تو نہیں ہو پائے گا پورا ہے نا. تو چلیے ہم سورہ نصر شروع کرتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگ تحفظ تسمیہ کی بہت اچھے سے کوشش کریں ہے نا. اس کو پڑھنے کی بالکل ایسے کوشش کریں جیسا وہ ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ پہلے سنا کریں آپ لوگ اور سارے لوگ ایک ساتھ بولا کریں ہے نا. الگ الگ بولیں گے تو سب ٹائم وقت زیادہ جائے گا. ایک تو جیسے میں بولوں اس کے فوراً بعد آپ بھی پڑھنا ہے نا. اعوذ اعوذ باللہ 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 من الشیطان من الشیطان شیطان 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 نہیں تو ہے وہاں پر تاء شیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء إذا جاء نصر اللہ. نصر الله. اب یہاں پر آپ لفظ اللہ کو موٹا پڑھ سکتے ہیں. نصر اللہ نصر الله والفتح. والفتح. اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی آیت ہے یہ. الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور زیر زبر پیش کی حرکت کو کھینچتے نہیں ہیں تو جلدی پڑھیں گے اسے بالکل نہیں کھینچیں گے. زال کے اوپر زبر کی حرکت ہے پھر الف ہے نا. یہ دیکھیں آپ یہ کیا ہو گیا یہ عامر ہاں یہ جو ہے نا یہاں پر یہ الف کی حرکت ہے اور الف کے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے. الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. پھر جیم پہ زبر ہے اور الف کے اوپر مد ہے تو اسے حرف مد کہیں گے ہے نا. الف کو ہم حرف مد کہیں گے. تو یہ اس کے بعد حمزہ فوراً اسی کلمے میں آ رہا ہے جاء ہے نا. حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو کون سا یہ قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر. مد متصل. مد متصل ہو رہا ہے یہاں پر. مد کیونکہ حرف مد کے فوراً بعد اسی کلمے میں اگر حمزہ آ رہے تو
मध्य मुत्तसिल होगा और उसे हम वाजिब मद भी कहते हैं, और उसे हम 2, 2.5 और 3 अलिफ 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ते हैं। 2, 2.5 और 4 अलिफ की मकदार है ना। 4 अलिफ। हाँ, 2, 2.5 और 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम वाजिब मद भी कहते हैं, ठीक है। अब हमजा पे तो जबर की हरकत है, तो हम इसे जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, क्योंकि यहाँ जेर जबर पेश की हरकत को नहीं खींचते। नून पे जबर की हरकत है, इसे भी जल्दी पढ़ेंगे, नहीं खींचेंगे। और स्वाद के ऊपर मद लगा है, और जब मद वाला हुर्फ होता है तो उसके पहले वाले हुर्फ से हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्वाद पे जज़म है, तो हम नून से स्वाद को मिलाएंगे, ठीक है। रा के ऊपर पेश की हरकत है, तो रा के ऊपर जब जबर और पेश की हरकत होती है तो हम उसे मोटा पढ़ते हैं, और जेर होता है तो हम उसे बारीक पढ़ते हैं, है ना। फिर लफ्ज अल्लाह आ रहा है। लफ्ज अल्लाह के पहले या लफ्ज अल्लाह के लाम लफ्ज अल्लाह के लाम के ऊपर नीचे कुछ हो, या लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले कुछ हो, तो हम अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लफ्ज अल्लाह के पहले रा के ऊपर पेश है ना। तो हम क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। हाँ, पुर पढ़ेंगे, क्योंकि पेश है, जबर पेश होता है तो हम लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ते हैं, और रा को भी पुर पढ़ते हैं, ठीक है। रा पे भी जबर पेश होता है तो हम पुर पढ़ते हैं, लफ्ज अल्लाह के पहले भी जबर पेश होता है तो हम पुर पढ़ते हैं। रा पे पेश और जबर होगा तो हम रा को पुर पढ़ेंगे, लफ्ज अल्लाह के पहले अगर जबर पेश होगा तो हम लफ्ज अल्लाह को पूरा पुर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लफ्ज अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ा जबर है, तो इसे हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मकदार, क्योंकि खड़ा जबर अलिफ मत्ता के बराबर होता है, ठीक है। फिर हा के नीचे जेर की हरकत है, और वाव पे भी जबर की हरकत है, तो हम दोनों को नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि हरकत को हम जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते। अब वाव के बाद कौन सा हुर्फ, कौन सा कायदा लग रहा है? कमरी का। हाँ, नहीं, हाँ हुर्फ कमरी का लग रहा है, क्योंकि हम लाम को पढ़ रहे हैं, है ना, अलिफ को नहीं पढ़ रहे। हुर्फ कमरी में से हुर्फ कमरी के 14 हरफों में से फा आ रहा है ना। हाँ, तो हम जब लाम पे जज़म है तो हम वाव को सीधे लाम से मिलाएंगे, अलिफ को छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर फा के ऊपर जबर की हरकत है, जल्दी पड़ेगी। फिर ता पे जज़म है, और जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं, तो यहाँ हम फा से ता को मिलाएंगे। फिर हा के ऊपर पेश की हरकत है, तो यहाँ आयत करने पर क्या होगा, यहाँ पर जज़म हो जाएगा। आयत करने पर यहाँ पर साकिन हो जाएगा, यानी जज़म हो जाएगा। हाँ, तो हम इसे पढ़ेंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, है ना। ये आ गई अच्छे से समझ में? इसमें कोई मतलब कोई ऐसी कायदा है जो आपके समझ में नहीं आया इस आयत में? सब आ गया सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे देखें, वाव पे जबर की हरकत है, और रा पे भी जबर की हरकत है। इन्हें हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, लेकिन रा पे जबर की हरकत है तो हम रा को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि जबर और पेश होता है रा पे, तो हम रा को पुर पढ़ते हैं ना। अलिफ के ऊपर जबर की हरकत है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे। हाँ, हमजा पढ़ेंगे। और फिर या साकिना है, तो कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ? साकिन वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़। नहीं, एक कायदा जी, या माशाल्लाह। मतलब कायदा लगा। नहीं 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 नहीं, जो यालीन हाँ, वो बताया ना अभी, जिन साहिबा ने बताया वो माशाल्लाह सही बताया था पहले। एक ने बताया या मत वाला बताया, और एक ने बताया याली, तो याली का कायदा सही है। ये जब जज़म वाली या से पहले जबर होता है तो क्या होता है, यालीन होता है। हाँ, और इसका क्या है काम, इसको जल्दी पढ़ते हैं इसको जी। हाँ, इसको खींचते नहीं है, बिल्कुल जल्दी पढ़ते नरम आवाज से, है ना। व आई ऐसे पढ़ेंगे, हमजा या जबर आई, है ना। अब देखिए, ता के ऊपर जबर है, लेकिन उसके बाद कौन सा कायदा लग रहा है, शमसी का लग रहा है। हाँ, गुन्ना हो रहा है, हर्फ शमसी हो रहा है। होगा। हाँ, गुन्ना तो हो रहा है, लेकिन हुर्फ शमसी भी है, नून है हुर्फ शमसी, तो अलिफ और लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नून के ऊपर तजदीद है, तो नून मुशद्दद हो रहा है, इसे नून मुशद्दद कहते हैं, जब नून पे तजदीद होती है। रा पे तजदीद होती है तो रा मुशद्दद होता है, मीम पे तजदीद होती है तो मीम मुशद्दद होता है, और नून पे तजदीद होती है तो नून मुशद्दद होता है, ठीक है।
अब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होता है ना, तो हम क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। मुन्ना के उनमें क्या होता है, गुन्ना नाक में नाक में आवाज को रोकना, नाक में हाँ आवाज बस को रोकना। नहीं, हाँ बस इस पे ध्यान देना कि नाक में आवाज को रोकना गुन्ना होता है ना। रोकना। जी हाँ बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देना कि गुन्ना रोकना होता है, बाकी जो भी होता है छुपाना होता है तो इख्फा होता है, ठीक है। हाँ तो हम ता को नून से मिलाएंगे, क्योंकि तशदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं, एक बार हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, यानी उस पे कोई हरकत होती है ऊपर नीचे, है ना। तो अब यहाँ पे जबर की हरकत है, तो हम ता को नून से मिलाएंगे तो तन, ये गुन्ना हो गया है ना, तन। अब अलीफ है और फिर नून, जो तजदीद वाला नून है उस पे जबर है ना, जी जी। अलिफ के पहले जबर है तो क्या होगा, अलिफ मद्दा होगा। हाँ अलिफ मद्दा होगा। तो पूरा बताया करें, हम क्या करेंगे अलिफ उसको, मद्दा होगा तो एक अलिफ तो एक अलिफ की मकदार पूछ कर पढ़ेंगे। और हाँ दोनों खींचेंगे एक अलिफ की मिकदार, गुन्ना को भी हम एक अलिफ की मिकदार करेंगे और अलिफ मद्दा को भी हम एक एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वरअयतन्नास, सा के ऊपर हरकत है इसलिए हम जल्दी पढ़ेंगे इसे, वरअयतन्नास, है ना। अब याद, हाँ हाँ याद, नास ये या के ऊपर जबर की हरकत है, इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन दाल के ऊपर क्या है, जज़म है, यहाँ पे कलकला होगा। हाँ माशाल्लाह, दाल के ऊपर जज़म है क्योंकि ये कलकला के 5 हुर्फों में से दाल है। दाल आ रहा है। और दाल जज़म के साथ आता है ना, जब ये कलकला का हुर्फ कहलाता है ना। जो कलकला के हुर्फ हैं पूरे 5, उन पे अगर जज़म होगा तो कलकला होगा। यहाँ दाल पे जज़म है तो यहाँ कलकला हो रहा है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, यद, यद यद, है ना। अब ये खा पूरी आवाज। खौ के ऊपर पेश है, खौ को मोटा पढ़ते हैं हम, खौ के जी ऊपर पेश है तो हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लाम के ऊपर भी पेश है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, वाव पे जज़म है तो वाव मद्दा हो रहा है, शाकिना से तो एक पहले अलिफ की पेश है तो मिकदार। यहाँ पर वाव शाकिना होगा, इसको एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाह साकिना नहीं होगा, वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा होगा। वाव हाँ मद्दा। तो वाव जज़म वाली वाव हो और उसके पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, उसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं जी। यद कुलू ना के ऊपर जबर की हरकत है, हम ना को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ठीक है। जी वरअयत अन्नास यदखुलून, अब इसके आगे वाले हुर्फ पे क्या हो रहा है, आगे आप बताएं जल्दी से। या मद्दा हो रहा है, या से पहले जज़म वाली या है, जज़म उससे है यहाँ पहले पे और जेर है, फाफ यहाँ के मद्दा नीचे होगा। ज़ेर से या। दाल पे भी जेर है, उसके यहाँ पे दाल को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और या के ऊपर दाल के नीचे जज़म वाली या या मद्दा है, हो रहा इससे है, यहाँ पहले पे जेर आगे है, यहाँ बिल्कुल। पर भी या मद्दा होगी, इसको एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून पे जेर है, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। हम्म ठीक कहा आपने माशाल्लाह। फा की नहीं, फा पे भी फा या जिरफी, यहाँ भी या मद्दा हो रहा है। दाल या जेदी, यहाँ भी या मद्दा हो रहा है। दोनों या मद्दा हो रहे हैं तो हम एक एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। फी ती ऐसे पढ़ेंगे, है ना। जी अब आगे देखें कि नून के नीचे क्या है, जेर की हरकत जेर है। है ना, जेर की हरकत है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है आगे, अल्लाह हाँ नहीं फी दी, हाँ ला फी दी, अल्लाह दीनिल, के नाम बारीक अल्लाह पढ़ेंगे। के नाम को बारीक, लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। हाँ तो इससे माशाल्लाह। पहले जेर आ रहा है। हम्म पता नहीं क्या हो गया हाँ नून के नीचे जेर की हरकत है और आगे लफ्ज अल्लाह आ रहा है, तो हम लफ्ज अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। फी बारीक पढ़ेंगे। दीनिल्लाही, नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं ना, फी दीनिल्लाही, है ना, इस तरह पढ़ेंगे। ही हाँ अब अलिफ के ऊपर जबर की हरकत है और हम इसको क्या पढ़ेंगे, हमजा
اب हाँ हमजा पढ़ेंगे। हमजा पढ़ेंगे। अब फा पे जज़म है तो हम जज़म वाले हुर्फ को पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, है ना। वाव पे जबर है और अलीफ है, उसके बाद अलीफ के पहले जबर होता है तो अलीफ मद्दा होता है, उसको हम एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन आगे देखें जीम के ऊपर क्या है, तनवीन तनवीन। हाँ दो जेर की दो तनवीन जबर। लगी होगी, यहाँ पर आयत करने पर एक सेकेंड सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, गलत गलत नहीं बोलिए, थोड़ा घबराया नहीं करें, जल्दी नहीं करा करें, सोच के बोला करें कि जीम के ऊपर क्या लगा है। तन दो हाँ, जबर दो की तनवीन। जबर की ये तनवीन है, हाँ एक जबर बोलिए, सुनिए वही मैं पूछ रही हूँ, जितना मैं पूछा करूं बस उतना बताया करें। कोई कह रहा है कलकला हो रहा है, कोई कह रहा है जेर की तनवीन है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोच के बोला करें आप लोग, है ना, जी। देख कर बोला एक करें। जबर और एक अलीफ रहेगा, एक जबर खत्म हो जाएगा आयत करने पर। जीम के साथ जो अलीफ है वो तो खत्म नहीं होगा, वो तो वहीं रहेगा, सिर्फ जबर में से जी एक जबर, हाँ सिर्फ जबर। जबर जो होता है, पूरे पूरे जो हरकतें होती हैं उसमें सिर्फ तनवीन हो या हरकत हो, उसमें से सिर्फ जबर की तनवीन ऐसी होती है जिसमें से सिर्फ एक जबर खत्म होता है, दूसरा रहता है। तो क्या होगा यहाँ पर, अफवाज। सिर्फ एक नहीं जबर नहीं, रहेगा। तो जबर रहेगा तो हम कौन सा, अगर एक जबर रहेगा तो कौन सा कायदा लगेगा यहाँ। अलिफ मद्दा का लगेगा। तो जा एकदम नहीं करेंगे, हल्का से खींचेंगे, जी। अफवाज ऐसे, है ना, जा नहीं अफवाज। करेंगे, जा जी। अलिफ मद्दा होगा ना तो थोड़ा सा खींचेंगे हम उसे। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ऐसे पढ़ेंगे, है ना, वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। माशाल्लाह। अब देखिए आगे वाली आयत है, इसकी कितनी आयतें, 3 आयतें, है ना, 2 आयत हो गई, अब तीसरी है। फा के ऊपर जबर लगा है, सीन पर भी जबर लगा है, हम दोनों को जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन आगे जबर, आगे बा के ऊपर तजदीद है, बा के ऊपर तजदीद है तो हम तजदीद वाले हुर्फ को 2 बार पढ़ते हैं और थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। एक बार हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, यानी कोई हरकत उस पर भी होती है ऊपर नीचे, है ना, तो हम 2 बार इस तरह पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे, हम यहाँ पर सीन से बा को मिलाएंगे, फिर बा के नीचे भी जेर की हरकत है तो फसब्बिह, हा के ऊपर जज़म है तो हम बा को हा से मिलाएंगे, क्योंकि जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, है ना। तो हम फसब्बिह इस तरह पढ़ेंगे। हाँ, अब बा के नीचे जेर की हरकतें, हा के ऊपर जबर की हरकतें, दोनों को जल्दी पढ़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं खींचेंगे। जी मीम के ऊपर जज़म है तो जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। और दाल के नीचे जेर की हरकतें तो हम उसे जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, इस तरह फसब्बिह बिहम्दी, है ना, सब्बिह बेहमदी, बी हमदी, बेहमदी नहीं, बी हमदी। हाँ बी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमें मजहूल पढ़ने की, है ना, बाजिर बे ऐसे पढ़ते ना, तो वो आदत पड़ी हुई है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बाजिर बी हो जाएगा आपका, है ना, बी हमदी। अब रा के ऊपर जबर की हरकत है, मोटा पढ़ेंगे हम इसे और जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। बा के नीचे जेर की हरकत है लेकिन बा पे तजदीद लगी है और तजदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाकर और एक बार उसका खुद का वजूद होता है। यहाँ बा के नीचे जेर की हरकत है तो हम रा को बा से मिलाएंगे, बा के नीचे भी जेर की हरकत है, इससे पढ़ेंगे, और फिर काफ के ऊपर जबर की हरकत है, इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, है ना। रब्बी का, रब्बी का, रब्बी का, हाँ वाव, वाव वाव है, वाव के बाद क्या आ रहा है, सीन, सीन पे जज़म है, क्योंकि वाव पे कोई अलिफ पे कोई हरकत ही नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, है ना। वाव को हम सीधे, क्योंकि उसके बाद अलिफ के बाद अगर जज़म वाला हुर्फ आ रहा है, अगर इस पे है ना सीन के ऊपर कोई हरकत होती तो हम वाव, अलिफ मद्दा होता फिर वाव पे, है ना। अब यहाँ पे सीन के ऊपर जज़म है तो हम वाव को सीधे सीन से मिलाएंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वाव सीन जबर बस,
اب تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، نہیں کھینچیں گے، لیکن غین کے اوپر جزم ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں، یہاں ہم تا سے غین کو ملائیں گے، وستغ ہے نا۔ اب فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، اور را کے اوپر کیا ہے، را کیا ہے، جزم را ساکنہ ہے، ہاں، جزم والے، ہاں جزم ہوتا ہے را پہ تو ہم رائے ساکنہ بولتے ہیں اسے، اور ہم فا سے را کو ملا کے پڑھیں گے پھر، اور ہا کے اوپر پیش ہے تو وستغفر ہے، وستغفرہ ہے، لیکن ہم آیت کریں گے تو ہم وستغفرہ، وستغفرہ ہے نا، ہا کی ہلکی سی آواز آئی۔ اب الف کے نیچے زیر کی حرکتیں سے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، اور یہاں پہ نون پہ تشدید ہے تو نون مشدد ہو رہا ہے تو ہم یہاں کیا کریں گے، نون کو تجدید والے دو حروف بار کو پہلے پڑھیں والے حروف کو ملائیں گے، پہلے والے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ایک بار غنہ اس کریں گے، کی وجہ سے دو بار ہاں سختی کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ غنہ کر کریں کے۔ گے، دیکھیے تشدید والے حرف ہوتا ہے نا جو، تو اس کو تو ہم سختی سے دو بار پڑھتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہاں نون پہ تشدید ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، ان دو بار تو ہو رہا ہے لیکن غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ، جی ان اب یہاں پہ الٹا پیش ہے تو یہ کیا ہے، یہ واو مدہ کے برابر، ایک کھینچیں گے، ایک الف الٹا مدہ، پیش، ہاں الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے تو اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں ہاں کھینچ کر پڑھیں گے، انہو اس طرح ہاں، کاف پہ زبر ہے لیکن کاف کے ساتھ جو الف جڑا ہے اس کے پہلے زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، یہ یہاں ایک پر الف کیا کی ہوگا، مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کی کر پڑیں گے۔ الف مدہ جی، اور نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو ہم اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، کانا، ہاں تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، واو پہ تشدید ہے، بتائیں جلدی، یار معلوم نہ پڑھنے لگ رہے ہیں، واو پہ تشدید ہے، واو الف لگا ہے ٹھیک ہے لیکن واو پہ تشدید ہے، اور الف ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی، تو آپ الف کو صرف الف مدہ کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ تشدید والا حرف تو واو ہے نا، تو واو کو ہم سختی سے پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملائیں گے اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہے اور الف مدہ تو ہو ہی رہا ہے نا، توابا، اب یہ پھر دو زبر کا تنوین آ گئی ہے، تو یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کی، جی جی، دو زبر کی، ہاں دو زبر کی تنوین ہوتی ہے تو ایک زبر بچتا ہے، مگر یہاں پہ الف لگا ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا تو ہلکا سے کھینچیں گے ہم، انہو کان توابا، ایسے پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ اذا جاء إذا جاء نصر اللہ، نشر سواد کو ہم نصر اللہ نہیں کہیں گے، ناسو، سواد کو ہم جیسے سوالین ہوتی ہے نا، جیسے ہم سوالین کی گولی کا نام لیتے ہیں نا، اس میں سو کی آواز آتی ہے، نصر اللہ والفتح، نصر الله ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفره ربك واستغفر
इन्नहु कान तव्वाबा। इन्नहु कान तव्वाबा। अच्छा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये जो आपने अभी पढ़ी है सूरह नस्र, है ना? जी तो आपको ये इसके कायदे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी कायदे में तो आप उस डाउट को अभी के अभी खत्म कर लें। अभी मैं ये पूछ रही थी कि जी। सूरा जब पढ़ेंगे तो पूरा पूरा कायदा बताने में तो बहुत गड़बड़ होता है, नहीं तो नहीं थोड़ा थोड़ा ही बता नहीं दें नहीं तो चलेगा? नहीं नहीं, एक आयत का पूछेंगे जैसे। नहीं वो नहीं तो नहीं, आपको आयत, होमवर्क भेजने में। अरे हमने कहा आपसे कि पूरी पूरी मत भेजिए, आप एक आयत, अच्छा, आयत समझते हाँ हैं? मैं वही इज़ा पूछ रही जाअ थी। नस्रुल्लाहि वल फतह, हाँ एक जी आयत जी, है ना? हाँ जी जी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, इतना भी भेज सकती हैं आप। जी कोई जी। आप पर पाबंदी नहीं है कि आप पूरा भेजें। पूरा आप ये सोचें कि आप तो पूरा भेज भी देंगी, लेकिन मुझे चेक करने में एक एक बारीकी से चेक करना पड़ता है कि कोई गलती तो नहीं है ना? जी, तो कितना मतलब भेज सकते हैं? एक भेज दो, बहुत हो बहुत ज्यादा हो तो 2 आयत भेज दें बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना कम भेजेंगे उतने अच्छे से आपकी ये जो चेक होने में आपकी जो गलतियां होंगी वो अच्छे से समझ में आएंगी, है ना? तो मैं पूरा, किसी ने भेजा भी था तो मैंने पूरा चेक नहीं करा है। एक आयत भेजो और बहुत ज्यादा हो तो 2, बस इससे ज्यादा नहीं, है ना? तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और भेज पाएंगे और मैं भी अच्छे से चेक कर पाऊंगी, है ना? जब भी हमने भेजा था। जी जी, वो हाँ, तो इसलिए मैंने देखिए फिर भी आपकी सिर्फ 2 आयतें चेक की है ना, क्योंकि चेक करके मुझे वुजू करके कलाम पाक लेके बैठना पड़ता है बाकायदा। ऐसे अपन हर कभी उठ के नहीं बैठ सकते हैं चेक करने के लिए, है ना? तो जितना आप थोड़ा से थोड़ा भेजें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अच्छे कायदों को खूब अच्छे से समझ के फिर आप भेजें, इंशाल्लाह आपका जो कुछ भी जैसा भी होगा। जी और गलतियां आएंगी तो गलतियां भी बताई जाएंगी, तो उसमें भी नाराजगी की बात नहीं है। आपकी गलतियां बताने से आपकी जो कमियां हैं वो मुकम्मल होता है, फिर वो सही होती हैं, है ना? जी चलिए अब हम पढ़ लें, एक और सूरा पढ़ लें, है ना? सूरह काफिरून। जी। सूरह काफिरून का मतलब है कुफ्र करने वाला। इसमें एक रुकू है और 6 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون. قل या या अय्युहल काफिर। देखिए जब मैं पढ़ती हूँ ना तो उसको गौर से सुना करें कि मैंने कैसे पढ़ा। मैंने अय्युहल नहीं पढ़ा। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या या काफिरून। कुल या को खींचना है क्योंकि यहाँ बड़ा कायदा लग रहा है, मैं बताऊंगी अभी आपको। कुल या आपके स्क्रीन अय्यु, पे नहीं आ रही है सूरा? हाँ स्क्रीन पे नहीं है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा रुके मैं भेजती हूँ। खड़ा सा आ गई, ये है नीचे, जी ये है नीचे, है ना? कुल या अय्युहल काफिरून।
قل يا أيها الكافرون کافرون نہیں، کافرون. كافرون قل یا ایہا الکافرون. قل يا الکافرون. ہاں دیکھیے، جب ہم پیش پڑھتے ہیں جیسے قاف ہے تو قاف پیش قو پڑھیں گے، ہے نا. اب فا ہے تو فا کے نیچے زیر ہے تو فا زیر فی پڑھیں گے، فا زیر فے نہیں پڑھیں گے. فا زیر فی پڑھیں گے تو جب ہم ملائیں گے تو فا کی زیر کی آواز آنا چاہیے. جیسے قاف کے اوپر پیش ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. اور لام پہ جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو قاف لام پیش قل، ہے نا. اب یہاں پہ علی یا کے اوپر کھڑا زبر لگائے تو یہ حرف مد ہے، اس کے اوپر مد بھی لگا ہے نا. جی ہاں اس پہ مد بھی لگا ہے. ہاں تو یہ حرف مد ہے. حرف مد کے بعد اب اسی کلمے میں حمزہ کس شکل میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ یہ تو الف کی شکل میں، یا الف کی شکل میں. یا کو دیکھیں غور سے تو یا کے اوپر جو کھڑا الف لگا ہے وہاں مد لگا ہے تو یہ حرف مد ہو گیا ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ مد اس کے منفصل. بعد حمزہ ہے، مد الف ہے، الف کے حمزہ اوپر اسی زبر کلمے میں ہے آ رہا ہے. تو حمزہ ہوگا، ہاں دوسرے کلمے میں ہاں، آ رہا ہے. نہیں نہیں اسی کلمے میں آ رہا ہے. اسی دیکھیے یا کلمے میں آ الف رہا ہے. زبر یا ہے نا، تو الف کے جی اوپر یا تو ہو گیا حرف مد، الف کے اوپر کیا ہو گیا؟ زبر کی حرکت ہو گئی تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اب اسی کلمے میں آ رہا ہے وہ، تو ہم یا اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو مد منتصل. منفصل. ہاں مد متصل، کیونکہ آ تو وہ حمزہ الف کی شکل میں رہے لیکن آ تو اسی کلمے میں رہے نا، تو ہم جی مد متصل ہی پڑھیں گے اسے، ہے نا. جی تو یہ ہو گیا ہمیشہ اپنی شکل میں ہوتا ہے تو اسی کلمے میں ہوتا ہے نا اپنی. نہیں نہیں، یہ دیکھیے کہیں کہیں کچھ خاص جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ حمزہ اچھا الف کی شکل میں بھی آتا ہے لیکن ہے تو اسی کلمے میں. جب اس کا قاعدہ تو یہی ہے کہ اسی کلمے میں، وہ تو ایک بات بتائیے کہ زیادہ تر حمزہ اپنی خاص شکل میں آتا ہے، لیکن کبھی کچھ شکلیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ الف کی شکل میں بھی آتا ہے. تو بس اس کو یہ دیکھنا ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا، ہے نا. جی اب یا کے ساتھ ہی حمزہ ہے تو اسی کلمے میں ہوا یا، ہے نا. جی. جی تو یہ ہو گیا مد متصل. اور مد متصل کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ 2 2.5 4 4 الف کی مقدار کی کھینچ مقدار کر کھینچ کے پڑھیں. پڑھتے ہیں. مد کھینچ کے متصل کی پڑھتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ مد متصل کی ڈیفینیشن ہے 2 2.5 4 الف کی مقدار کھینچ نہیں کر پڑھیں گے، اسے مد دیکھیے جائز. سنیے، پڑھ کے سنا. نہیں سب غلط بتا رہی ہیں آپ، رکیں ایک سیکنڈ. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا، اسے واجب مد بھی کہتے ہیں. اور اسے 2 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. سبھی لوگ ان چیزوں کو لکھ کر رکھیں کیونکہ یہ ہے نا، آپ روز ایک بار بھی اگر 2 بار بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا. اور آپ صرف سن کے رکھ دیں گے اور بعد میں پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ کیا بتایا تھا یہاں پر اور کیا نہیں بتایا تھا، ہے نا. جن کی مجبوری ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن جن کی مجبوری نہیں ہے تو وہ اپنا کر سکتے ہیں. یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا اور تو ہم اسے مد متصل کہیں گے اور اسے واجب مد بھی کہیں گے اور اسے 2 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہے نا. اور اب دیکھیں، ہاں جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی، اور اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو اسے جائز مت کہیں گے کہ اسے بھی واجب ہی کہیں گے. نہیں دیکھو، مد متصل کو واجب مد کہتے ہیں اور مد منفصل کو جائز مد کہتے ہیں، ہے نا. منفصل. مد متصل کو واجب مد کہتے ہیں اور مد منفصل کو جائز مد کہتے ہیں. جی. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ یا کے اوپر تشدید لگی ہے اور ہم یا کے اوپر تشدید لگی، تشدید والے حرف کو ہم 2 بار ملا کر 2 بار پڑھتے ہیں. ایک بار
पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, तो हम अलिफ से या को मिलाएंगे, या के ऊपर फिर पेश है और सख्ती से पढ़ेंगे अय्यू, है ना, या पेश यू हो गया ना, हमजा या जबर आई, या पेश यू, अय्यू, है ना। अय्यो नहीं पढ़ना है, मजहूल हो जाएगा, अय्यू पढ़ना है, अय्यू, है ना। जी। कुल या अय्यू, है ना। कुल या अय्यू। हाँ अय्यू। अब हा है, हा के ऊपर क्या है, क्या कौन सा कायदा लग रहा है? हाँ पे अलिफ मद्दा कायदा लग रहा। अब उसके बाद बताएं कौन सा कायदा लग रहा है? उसके बाद खड़ा जबर है तो एक अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे कहाँ काफ खड़ा पे, जबर है? कहाँ पर पे, खड़ा जबर है? काफ पे काफ पे पे खड़ा जजम जबर है, सुनिए खड़ा जबर है काफ पे, उससे पहले भी तो कुछ है। अपी हुरूफ कमरी का नहीं, कायदा होता है। कमरी का लग हरूफ हम्म, शम्स, हरूफ हाँ कमरी हुरूफ लगा। कमरी अलिफ का को नहीं लग रहा पढ़ेंगे, है। लाम को पढ़ेंगे। जी हुर्फ काफ आ रहा है, हुर्फ कमरी के हुर्फों में से काफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अलीफ को छोड़ देंगे और लाम को पढ़ेंगे, क्योंकि लाम पे जज़म है ना, जज़म है, तो हम हा को सिर्फ सीधे लाम से मिला देंगे, हा लाम जी जबर हल, क्योंकि अलिफ मद्दा हो रहा है, लेकिन अगर जज़म आ गया तो हम अलिफ मद्दा नहीं होगा, फिर हा को हम सीधे लाम से लाम से मिला मिला। देंगे, है ना। और काफ के जी ऊपर खड़ा जबर है, ये तो सबको पता है कि ये अलिफ मद्दा के बराबर होता है, इसे खींच कर पढ़ते हैं, एक अलिफ का मिकदार, है ना। फा के जी नीचे जेर की हरकत है, इसे जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। रा के ऊपर पेश है, इसे मोटा पढ़ेंगे, लेकिन पेश की हरकत है तो इसे भी हम जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन वाव के ऊपर वाव क्या मद्दा है? हो रहा है, हाँ जजम है वाव वाव के ऊपर, तो वाव जजम मद्दा वाला है। हाँ जजम एक वाला अलिफ की वाव है, हरकत। उसके पहले पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और नून के ऊपर क्या है? जबर जबर। की हरकत। हाँ तो क्या होगा आयत करने पर? नून जबर साकिन हो जाएगा तो साकिन हो मजबूर। जाएगी, साकिन हो हाँ जाएगी। आयत करने पर साकिन हो नून साकिन हो जाएगा, तो हम उसको इस तरह पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या कुल या अय्युहल अय्युहल काफिरून। अच्छा, सबके समझ में आ गई ये आयत के कायदे? जी। जी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। ला अअबुदु मा तअबुदून, ला ताबिदून। बी कहीं भी नहीं है, आबिदू नहीं है, आबुदू है, बूदू, आबिदू आबिदू कहीं भी नहीं है, और देखिए ये पहले वाले बा को भी नीचे जेर कर दिया है, दूसरे वाले बा के नीचे भी जेर कर दिया, तो ये हमने तब्दील कर दिया, हर्फ की जो सही जगह है उसको हमने तब्दील करी है। ये तो अगर हम सीख नहीं रहे होंगे और ये चीज हम करेंगे तो बहुत बड़ी लहने जली, लहने खफी की गलतियां होती हैं, लहने जली की गलती होती है हुर्फ की खूबसूरती खत्म करने की, और लहने खफी की गलती होती है ज्यादा खतरनाक, कि उसको बिल्कुल मायने तब्दील कर देता है। तो हमें ये देखकर पढ़ना है कि हमें हुर्फ को सही तरीके से निकालना है, और वो उस पे जो कायदे लग रहे हैं उनको भी ठीक तरीके से, है ना। अब लाम के ऊपर देखिए, लाम दूसरी आयत पढ़ लें हम, तो लाम के ऊपर जबर की हरकत है, इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और जो लाम अलीफ के साथ वाला अलीफ, लाम के साथ जो अलीफ जुड़ा है ना, लाम अलीफ, जी अलीफ के ऊपर मद लगा है ना। जी। हाँ तो ये इसे हुर्फ मद कहेंगे। लाम पे जो जबर लगा है उसको तो हम जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि जबर की हरकत लगी है, उसे हम खींचते नहीं है, लेकिन अलीफ के ऊपर हुर्फ मद है, ला। अब ये देखें उसके बाद क्या है? हमजा 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 है, और आइन है। नहीं, हमजा दूसरे कलमे में है, ये देखें हाँ आप। हमजा दूसरे यहाँ कलमे में। हाँ तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल हो रहा है। देखिए मुनफसिल हो रहा है मद्दे। हाँ देखिए, हुर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो क्या होगा? मद्दे मुनफसिल होगा, और इसे हम जायज मद भी मुनफसिल। कहते हैं।
मुनफसिल। इसे हम जायज मद भी कहते हैं, मुनफसिल। इसे भी हम 2, 2.5 और 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, है 4 ना। की अकबर खींच के पढ़ते हैं। अब ठीक। आइन पे जज़म की हरकत है, मतलब जज़म है इन पर, तो हम उसको पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो हमजा से, हमजा आइन जबर आ, हमजा आइन जबर आ की भी और आइन की भी दोनों आवाजें आना चाहिए, है ना। आ, हमजा आइन जबर आ, हाँ। बा पेश बू, आबू। पेश बू, आ अबू, बुदू। दाल पेश दू। दाल पेश दू, दू। देखिए दोनों पे पेश की हरकत है और जेर जबर पेश को हम बिल्कुल नहीं खींचते, जल्दी पढ़ते हैं ना। ला अअबुदु, ला अअबुदु, अबुदु। मीम, मीम पे जबर है, अलिफ है उसके बाद। अलिफ के पहले अगर जबर होता है तो हम क्या होता है वहां पे, अलिफ मद्दा वहाँ पर होता है, अलिफ इसलिए हम मद्दा होता है। एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। ता पे जबर की हरकत है, उसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। आइन पर जज़म है और जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। बा पे पेश की हरकत है, दाल पे भी पेश की हरकत है, तो हम इसे जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हरकत को, जेर जबर पेश की हरकत को जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते। लेकिन आगे जज़म है वाव पर, वाव पर जज़म हो और उसके पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और नून पे जबर की हरकत है, लेकिन आयत करेंगे तो नून पे साकिन हो जाएगा, यानी जज़म आ जाएगा, है ना। आयत करने पर तो हम उसको इस तरह पढ़ेंगे, ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अबुदु मा ताबिदून, देखिए अभी भी किसी ने, कौन साहिबा पढ़ रही है, ताबीदून नहीं है, ताबुदून है। देखिए ला आबुदू, ताबुदून, हाँ देखिए ला आबुदू, दू को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है, ये वाले पहले वाले ला आबुदू, ला ला आबुदू, अबुदु। ला आबुदू, बू, बू कहिए, बो नहीं कहिए, बू। ला ला आबुदू, आबि, ला आबुदू, हाँ आबुदू, मा ताबुदून। मा ताबुदु। ताबुदून, इन साहिबा से भी ये नहीं निकल रहा ना, एक दो बार कह लें, ला आबुदू, ला ला अबुदु। आबुदू, मा ताबुदून। मा ताबुदु। ताबुदून। देखिए ऐसे ही कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि, वरहमतुल्लाहि वहां भी नहीं है, वरहमतुल्लाहि है वहां पर भी, है ना। इन चीजों का ध्यान रखें तो इंशाल्लाह आपकी ये गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी। अब आगे हम आते हैं कौन सी आयत पर, तीसरी आयत। तीसरी आयत है ना। तो वाव पर जज़म, वाव, हाँ एक सेकेंड रुक जाए, जी जी कुछ कह रही हैं आप। नहीं नहीं, एक ही स्क्रीन पे नहीं आ रही, एक ही आयत आ रही थी। जी आ जी गई। जब आ गई। जी हाँ अब देखिए तीसरी हरकत में वो तीसरी आयत में हरकत ही निकल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तीसरी आयत में वाव पर जबर की हरकत है, इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और लाम अलिफ के लाम पे, लाम पे जबर की हरकत है, इसे भी हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन आगे क्या है, अलिफ पे मद है। अलिफ पे मद है, तो अलिफ पे मद। कौन सा वाला मुनफसिल हो रहा है, हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है हुरूफ मद के बाद, तो मद्दे हम्म, मुनफसिल हो रहा है। हाँ इसे 2 माशा ढाई 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अच्छा आपको, आप लोगों को ये मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल अच्छे से समझ में आ गए ना, जी कि जी बस हमजा उसी कलमे में होना चाहिए जब मद्दे मुत्तसिल होगा
اور حمزہ دوسرے کلمے ہوا تو مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی اچھا حرف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہو رہا ہے اور اس کو ہم جائز مد بھی کہتے ہیں اور اسے ہم 2 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں ہے نا. نون کے اوپر کیا ہے؟ نون ساکن ہے. نون کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تا کے اوپر پیش ہے اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. میم پہ جزم ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو تامیم پیش تم. اور عین پر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. با کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو ہم زیر زبر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے. لیکن جزم ہے واو کے اوپر، اس کے آگے واو پر جزم ہے اور اس کے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا اور اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نون پہ زبر کی حرکت ہے اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے ولا انتم ارے ہاں سوچو، دیکھو مجھ سے اپنی بھی آیت پہ ہو رہا ہے نا ہاں جی، نون ساکن آ رہا ہے. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں، مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ رہے. تو یہاں پہ جب میں نے پڑھتے ٹائم اخفا کرا تو مجھے ایک دم دھیان آ گیا کہ یہ چھوڑ دیا میں نے. تو تم ہے نا یہاں پہ نون ساکن تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے. اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز چھپانا. ناک میں 1 الف کی مقدار ناک میں آواز کو چھپانا. ہاں چھپانا. اس کا دھیان رکھیں ہے نا. ولا انتم عابدون ما. اچھا ہاں بس عابدون تک کرے. ولا عابدون. اب ہاں اب یہ میم پہ زبر ہے اور پھر الف کے اوپر مد لگائے تو یہ مد میم کو لگائے. ہم پڑھیں گے، لیکن الف کے اوپر جب حرف مد ہے اور اس کے آگے حمزہ دوسرے کلمے میں. ہاں ایک کلمہ ہو گیا آبودو، دوسرا کلمہ ہو گیا تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے نا. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل کا. منفصل. ہاں. اس کے بعد عین پر جزم ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. با پہ پیش ہے، دال پہ پیش ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن اگر ہم آیت ہوتی ہے یہاں پر تو دال کے اوپر کیا آ جائے گا؟ ساکن بن جائے گا، دال ساکن. ہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہاں قلقلہ پہ کا. قلقلہ لگے گا. ہاں قلقلہ ہو جائے قلقلہ گا. کے 5 حصوں میں سے دال آ جائے گا. ہاں دال ہو جائے گا. صحیح ماشاء اللہ. تو ہم اس کو ایسا پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. اب آگے چلتے ہیں. یہاں بھی بالکل سیم ہے یہ والا قاعدہ ہے نا. واو کے اوپر واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لام پہ زبر کی حرکت ہے، اسے ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن لام الف کے اوپر حرف مد ہے، مطلب مد لگا ہے تو اسے حرف مد کہیں گے ہم. اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے نا. تو یہاں پہ مد منفصل ہو رہا ہے، اسے ہم جائز مد بھی کہتے ہیں اور اسے ہم 2 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. اب جو حرف آ رہا ہے اسے بہت دھیان سے سنیں، بہت دھیان سے سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں. تو یہ اگر آپ نے اس کے ساتھ غلطی کری تو بہت بڑی غلطی ہوگی ہے نا. اب یہ حمزہ پہ زبر تو ہے ولا انا، آپ اسے کیسے پڑھیں گے؟ انا جلدی پڑھیں گے اس میں. انا جلدی پڑھیں گے. ہاں انا جلدی کہہ کے نکلنا ہے کیونکہ انا لفظ تھوڑا تکبر والا ہے. تو اسے ہم کیونکہ لوگ اس کو جو نہیں سمجھتے الف کے، اس کو الف مدہ سمجھیں گے ہے نا. انا کر کے پڑھیں گے ہے نا، جن کو نہیں پتا. تو یہ الف مدہ سمجھیں گے. الف کے پہلے نون پہ زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہوگا اور ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے، صرف اسی حرف پہ انا لفظ پہ نہیں ہے یہ، باقی ہر جگہ ہے. لیکن انا لفظ پہ ہم کھینچیں گے نہیں، بنا ہے وہ، اور ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. انا کہہ کر جلدی اور آگے نکل جائیں گے. ولا انا کہہ کے اب ہے آگے انتم ہوگا نا، ولا. جی انتم
अंतुम कहाँ है? अभी तो अना चल रहा है, वला अना। अब अच्छा, ऐन, वला ऐन अना। अलिफ जबर, ऐन पे जबर की हरकत है, अलिफ उसके साथ अलिफ लगा है ना, अलिफ के पहले जबर की हरकत है तो आ, बा के नीचे जेर की, हाँ ये तो खींचे, अलिफ मद्दा हो रहा है खींचेगा, बा के नीचे जेर की हरकत है, ये बिल्कुल नहीं खींचेगी, जल्दी पढ़ेंगे। दाल के ऊपर क्या है? दो तनवीन, पेश, दो तनवीन पेश की की दो तनवीन। पेश। तनवीन। अच्छा, हाँ मीम में मिला के अब पे गुन्ना होगा। हाँ, दाल के हुरूफ ऊपर दो पेश यरमलून में की से मीम आ तनवीन रहा है। है। हाँ, दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन और नून साकिन के बाद कौन सा कायदा है? हुरूफ यरमलून में से दूसरे कलमे में मीम आ रहा है। हाँ, हुर्फ यरमलून में से जो इदगाम नाकिस है ना, इदगाम नाफिस, इदगाम यरमलून में दो, इदगाम नाकिस, जी। हाँ यरमलून में दो है, इदगाम ताम में लाम हो रहा है और इदगाम नाकिस में या वाव नाकिस, मीम नून है, तो यहाँ मीम आ रहा है, तो यहाँ यरमलून का कायदा लग रहा है, तो हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, है ना। जी जी। जी। दाल मीम दो पेश दुम, दाल मीम आबिदुम, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, है ना, गुन्ना के साथ। तुम अब मीम के साथ अलिफ मद्दा भी हो रहा है, अलिफ के पहले मीम पे जबर है, वो हाँ जबर है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, इसे खींच कर पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आयन पे जबर है, बा पे जबर है, दोनों को हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। दाल, तुम हाँ अब ये देखें, दाल के ऊपर क्या है? जज़म, जजम। अलग वाले हरूफ में से दाल आ रहा है, जज़म वाला तो यहाँ पर वाला हाँ है। तो हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर, अब बताएं आप। अब्बद, दोहरी आवाज आएगी। आबद तुम। नहीं नहीं, अबद, गौर से देखें, पहले गौर से देखें फिर बताएं, गौर से देखें किसके समझ में आ रहा है कि यहाँ किस तरह जी पढ़ना जी है। जी, यहाँ पर अब इसको दाल से नहीं मिलाएंगे, बा को ता से मिलाई, ता हाँ, पे जी, तजदीद है ये इसलिए। ध्यान से देख के बोलना चाहिए, अभी एग्जाम में आप ऐसे बोलेंगी तो आपके हाँ नंबर हाँ, कट सही जाएंगे, जी, है ना। अब सही ये सही। देखिए, दाल के ऊपर तो जजम है, लेकिन ता के ऊपर तजदीद है, जजम और तजदीद साथ आते हैं, तो तो हम किसे तजदीद पढ़ते वाले हैं? हरूफ को, हाँ जी। तरतीब को हाँ पढ़ते हैं। हाँ, अब इस पे ध्यान से देखें, इसे गौर रखें आगे कि कोई कभी भी इस तरह आए तो हम फट जी, से बताएं कि हम साथ अगर जज्म और तजदीद आ रहे हैं तो हम तजदीद को पढ़ेंगे वाले और हरूफ जज्म को को पढ़े। छोड़ देंगे, तो हम बा से सीधे ता को मिलाएंगे। जी आपी अबत जी। तुम, ता अबद मीम, अब तुम। यहाँ पहले अबद ही, तुम। हाँ आगे, अब यहाँ पहले ही मीम के ऊपर साकिन है ना, तो जी जी यहाँ जरूरत ही नहीं है ना, जी। जी। तो हम ता को जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ देंगे, तो साकिन हो ही जाएगा वैसे, तो इस तरह पढ़ेंगे, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला वला अना अना आबिदुम मा मा अब तुम अबदतुम। देखिए वला अना खिंच गया, वला 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 अना अना, अना फौरन कह के आबिदुम कह दें, जी, वला अना वला अना अना आबिदुम मा अब अबदतुम। मा अबद तुम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला वला अना अना आबिदुम अब मा अबद मा तुम। अबदतुम। अब ये पूरी आयत आपके अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट है इसमें? नहीं, अभी नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि दो अभी आयतें और बाकी हैं और वक्त ज्यादा हो गए। अब देखिए आगे पांचवी आयत देखें, वाव पे जबर की हरकत है और यहाँ लाम अलीफ के लाम पे जबर है, ये भी उसी तरह है ना, इन दोनों को हम जल्दी पढ़ेंगे, नहीं खींचेंगे, क्योंकि जेर जबर पेश की हरकत को हमें बिल्कुल नहीं खींचना, जल्दी पढ़ना है। लेकिन लाम अलीफ के जो अलीफ है उसके ऊपर मद लगा है, तो ये हुर्फ मद हो गया, और उसके बाद क्या है? के बाद है ये नून हमजा साकिन अलिफ दूसरे पे कलमे अलिफ में में हमजा आ रहा है। मद्दे मुनफसिल होगा। हाँ हाँ, हुर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है, बला हो गया एक कलमा, तुम दूसरा कलमा, है ना, तो यहाँ पे कौन सा कायदा लग रहा है? यहाँ तो मद्दे ऐसा लग रहा है मुनफसिल का नून कायदा साकिन लग के रहा है, बाद दो ढाई हाँ, के चार अलिफ में बीस से की आ मिकदार रहा है, तो खींच यहाँ कर पर पढ़ेंगे। तो तो अब आ गया नून के ऊपर जज़म, तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे एक फा हो यहाँ रहा पे है। इक्फा होगा। हाँ हाँ,
क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा की 15 हरफों में से ता आ रहा है ना। आ रहा है। हम इख्फा को मैंने होते हैं नाक में आवाज को छिपाना, तो हम करेंगे ऐसे पढ़ेंगे, नून की आवाज को छिपाते हैं ना। जैसे आप पढ़ें, आपसे अगर पूछा गया तो यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इख्फा का कायदा लग रहा है। नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ आता है तो हम उसकी नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं, उसे इख्फा कहते हैं ना। इस तरह बताएंगे आप। तो आप अगर आपने ये नहीं कहा कि नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे, आपने सिर्फ कह दिए कि इख्फा नाक में छुपाने को इख्फा कहते हैं, तो वो कहेंगे क्या छुपाने को कहते हैं इख्फा। तो आप पहले से तैयारी रखें कि नून की आवाज को इख्फा नाक में छिपा कर पढ़ते हैं ना। तो हम कहेंगे ये हो गया इख्फा। और ता के ऊपर पेश की हरकत है, इसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे। मीम पे जज़म है तो हम जज़म वाले हुर्फ को पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे तुम, है ना। तुम वला तुम तुम हाँ, अब देखिए कि आइन के ऊपर खड़ा जबर है, ये अलिफ मद्दा के बराबर होता है, इसे हम एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। बा के नीचे जेर की हरकत है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे क्योंकि हरकत को हम बिल्कुल नहीं खींचते। दाल के ऊपर भी पेश की हरकत है, जेर जबर पेश को हम बिल्कुल नहीं खींचते, जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन जजम वाला वाव आ गया आगे, तो यहाँ कौन सा कायदा हो गया? वावलीन हो रहा है। वाव अरे मद्दा हो रहा है। भाई, हाँ सोच के बोले, वावलीन कहाँ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है जैसन यहाँ वाली वावलीन। वाव हो वाव है, उसके मद्दा हो पहले रहा है, वाले वाव पे के पेश पहले है तो पेश वाव आ मद्दा रहा हो है। रहा है। वाव मद्दा हो रहा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जजम वाली वाव हो और उसके पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और इसे हम एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून पे जबर की हरकत है, हम इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हरकत को खींचते रहेंगे, है ना। तो आबिदूना ऐसे पढ़ेंगे, है ना। आबिदूना। हाँ, अब मीम पे जबर की हरकत है, इसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन अलिफ के उसके साथ जो अलिफ लगा है उसके ऊपर मद लगा है, हुर्फ मद हो गया ये, है ना। मत हो गए। हाँ, तो माँ एक कलमा हो गया और आबुद दूसरा कलमा हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कायदा है? यहाँ यहाँ पर मध्य मुनफसिल का कायदा है। नहीं नहीं, मुनफसिल है भाई, मुनफसिल। हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है, मुनफसिल। हाँ हाँ, मुनफसिल हो रहा है, इसे जायज मत भी कहते हैं ना। अब आइन पे जजम है और जजम वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। अब बा पे पेश है और दाल पे भी पेश है, तो हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन आगे आयत आ रही है, दाल के बाद दाल लास्ट हुर्फ है और उसके बाद आयत आ रही है, तो दाल पे क्या होगा? कलकला होगा। पेश पता ऐसे कहें, ऐसे बोले कि पेश जेर जबर पेश आयत करने पर जेर जबर पेश खत्म हो जाते हैं और साकिन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दाल है और जब दाल पे जजम होता है तो जजम वाली ये कलकला के हरफों में 5 हरफों में से दाल है और इस पे जजम हो गया तो यहाँ कलकला होगा, है ना। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला आबुद वला अंतुम वला अंतुम अंतुम आबिदून मा अअबुद। अब आगे लास्ट वाली आयत देखिए, लाम के ऊपर जबर की हरकत है और काफ के ऊपर पेश की हरकत है। जेर जबर पेश को हम बिल्कुल नहीं खींचते, जल्दी पढ़ते हैं ना। अब मीम पर क्या है? जजम है। जजम वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे लकुम। हाँ, अब दाल के नीचे जेर की हरकत है, इसको तो हम जल्दी पढ़ते हैं, जेर हरकत को हम जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन या के ऊपर जजम है और या जजम वाली या के पहले अगर जेर हो तो या मत या
या लीन होगा आपकी। या या मद्दा। देखिए या या मद्दा लीन होगा। या और मद्दा। देखिए या लीन और या, मेरी बहनों, प्यारी बहनों, थोड़ा सा ध्यान दो कि या जसम वाली या तो हर दोनों में आएगी, लेकिन उसके पहले जबर और जेर का फर्क देख लें। जेर होगा तो या मद्दा होगा, खिंचेगा, और जबर होगा तो लीन होगा, और वो नहीं खिंचेगा, जल्दी पढ़ेंगे। तो इस चीज का ध्यान दें कि या जजम वाली या से पहले यहाँ पर जेर है तो यहाँ पे या मद्दा होगा, इसे हम खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मकदार है ना। जेर जबर का फर्क देख लें बस, है ना। एक जेर और जबर के ऊपर नीचे होने से कितना पढ़ने में कितना फर्क आ जाता है, आप ये देखिए। या साकिन से पहले जेर होगा तो हम उसे खींच कर पढ़ेंगे, या साकिन से पहले जबर होगा तो हमें उसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे। यालीन होगा, अगर जबर होगा तो यालीन होगा, जेर होगा तो या मद्दा होगा, है ना। या मद्दा। हाँ, नून के ऊपर, नून के बच्चा। नून के ऊपर पेश की हरकत है, इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और काफ के ऊपर पेश की हरकत है, इसे भी हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन आगे मीम के ऊपर जजम, जजम वाले होठ को हम पहले वाले होठ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो दीनुकुम, दीनुकुम लकुम दीनुकुम। लकुम लकुम दीनुकुम। दीनुकुम। अब वाव पे जबर की हरकत है, और लाम के नीचे जेर की हरकत है, और या पे जबर की हरकत है। तीनों को हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, क्योंकि जेर जबर पेश को हम जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते, है ना। दाल के नीचे भी जेर की हरकत है, इसे भी नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन आगे क्या है, या जजम या वाली, मद्दा। जज्म वाली या है, पहले वाले हर्फ पे जेर है तो या मद्दा होगा। या मद्दा होगा। हाँ या मद्दा होगा, तो इसको हमें एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, है ना। नून के नीचे जेर की हरकत है, इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन आगे क्या आ रहा ऐड है, करने पर जेर खत्म। हाँ नून ऐड साकिन हो करने पर जेर जबर पेश खत्म हो जाएंगे, हाँ, साकिन और हो जाएगा। साकिन आ जाएगा तो नून साकिन हो जाएगा। तो हम कहेंगे वली यदीन, वाली जल्दी कहेंगे, वाली या जल्दी कहेंगे, वलिया। दीन, वलिया वलिया वली दीन। दीन, दीन। वलिया हाँ, दीन। वली दीन, वली यदीन। दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम लकुम वलिय दीन। हाँ, अच्छे से समझ में आ गया, कोई कायदा बचा नहीं। नहीं, अब भी आ गया समझ में। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। काफिरून। काफिरून, काफिरून। काफिरून। ला अअबुदु मा तअबुदून, ला अअबुदु अअबुदु मा फिर आबिदू ताबिदून। कहा किसी ने, ला आबिदू नहीं कहना भाई, ला आबुदू मा ला ताबुदून, ला अअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदू देखिए आप दू दू को भी खींच रहे हैं, आप लोग ऐसे कहें, ला अअबुदु मा तअबुदून, ला अअबुदु मा अअबुदू मा तअबुदून। ताबुदून। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला वला अअबुदू अंतुम आबिदून मा अअबुद। अअबुद। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला वला अना आबिदुम आबिदू मा अबदतुम। अबदतुम। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला वला अंतुम अंतुम आबिदून आबिदून मा अअबुद। अअबुद।
ये वाले माँ को भी थोड़ा खींचेंगे ना, माँ इस पे भी खींचेंगे थोड़ा ही। बुद्ध वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला वला लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जल्दी जल्दी नाम बताएं। अफसाना साहिबा, जी बुशरा साहिबा, अदीबा साहिबा, जी जी हाँ, लब्बैक ओ रुखसार साहिबा, नहीं हाँ, रुकैया मंसूरी, रुकैया साहिबा, जी रुखसार, फरजाना खान जी अपी लब्बैक। और रुखसार साहिबा, रुखसार साहिबा नहीं है। अशरा अशरा साहिबा, अशरा साहिबा नहीं है। अनीसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साइमा शफीक, साइमा साहिबा नहीं है। इंशा शेख, ये तो होंगी नहीं। फूल बी, फूल साहिबा, ये भी नहीं है। समीना खान, समीना लब्बैक साहिबा, लब्बैक। जी जी। और नाजमा साहिबा, जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माहिदा साहिबा, माहिदा साहिबा नहीं है। और अमरीन, अमरीन साहिबा भी नहीं है। और सैयदा, ये निक्की साहिबा भी काफी अच्छा पढ़ लेती थी, ये भी गायब है। क्या बात है, कम लोग हैं। कितने लोग हैं? अपना अपना नाम लेना सब। अपी हमारा नाम नहीं आया है सिमरन में। सिमरन आप कहाँ हैं? इसमें सिमरन तो है ही नहीं। समरी अमरीन है। सिमरन सिमरन आप कौन से? आप लेवल 2 में हैं। अभी तक तो आपका नाम नहीं था, पहली बार आप सुन रही हूँ मैं नाम जी आपका। अपी अभी अभी हम 3-4 दिन ऐड हुए हैं अभी अभी। अच्छा, तलत साहिबा मौजूद है? तलत साहिबा नहीं है मौजूद? अच्छा देखें, एक बार और बोलती हूँ। अफसाना साहिबा और अफसाना साहिबा हैं? क्या बात हो गई, आवाज नहीं आ रही मेरी? वो शायद अटेंडेंस देके चली गई। अफसाना है, वो बाथरूम गई, वॉशरूम गई। अच्छा अच्छा, अपने अपने नाम बोले एक एक। समीना अदीबा खान। हुसैन, जी, सब माइक बंद करके एक एक बोले, एक एक जल्दी। जी अदीबा नाज़मा हुसैन, सुल्तान। जी जी, नाज़मा साहिबा भी हैं जी, अदीबा साहिबा समीना भी हैं खान। जी, रुकैया समी मंसूरी। जी जी, रुकैया साहिबा भी हैं, समीना साहिबा भी हैं। और बताएं। 9 लोग अनीसा। हैं। एक, तीन, जी अनीसा साहिबा भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 9 लोग दिख रहे हैं इसमें। एक सेकेंड, क्या मैं इसमें नाम क्यों नहीं आ रहा है? हाँ तो 8 होना चाहिए फिर। अच्छा चलिए ठीक है ना। चलिए, अब वक्त ज्यादा हो गया। तलत साहिबा है नहीं तो शायद वो कुछ बात करती। तलत साहिबा मौजूद नहीं है ना? चलिए जी दुआ पढ़ लेते हैं हम। नहीं, आप में अफसाना साहिबा में जरा बहुत चली गई थी वॉशरूम। अटेंडेंस अटेंडेंस ले रही थी। चलिए दुआ पढ़ लें अब, है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल मिन्ना रब्बना मिन्ना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस इन्नका समीउल अंतस अलीम समीउल अलीम व तुब अलैना व तुब वतुब अलैना अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका इन्नका अंतत अंतत तव्वाबुर तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर्रहीम। सुब्हान रब्बी व रब्बिल इज़्ज़ति सुभान सुब्हान रब्बी व रब्बिल रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन 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 अलल 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 मुरसलीन। मुरसलीन। मुरसलीन।
الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. چلیے دیکھیے سبق ڈالیے، آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگے گی، جو سبق ڈالے گا اور اس کے آپ کو نمبر ملیں گے، چاہے ایک آیت کے جو قاعدے ہیں وہ بتائیں اور تھوڑا سا پریکٹس کر کے، ہے نا؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ سب کو السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جی